So just I was going through this book. I want to see how much useful it may be for you, whether it is useful or not. So let me revisit the syllabus, and I want to see how much I have completed. ये दिख रहा है ना? So unit 1, open loop, closed loop system, block diagram representation, linear and non-linear control. Linearity also I have discussed in the class. I think you must have done it. In order that a system be linear, two conditions must be satisfied, that is additivity and homogeneity. I have asked you to solve one problem from Ogata. I hope you must have solved this problem. Continuous and sample data control. Right now you leave it. Mathematical model of physical systems. We are right now going through that only. We are trying to find out mathematical model or transfer function of different control systems. And what is the implication of mathematical modeling? Mathematical modeling may be done either in transfer function form or in state space form. For linear time invariant system, we follow transfer function approach, and for any kind of system, linear time invariant system or nonlinear time invariant system, you can follow state space approach. Then analogous system, already we have studied AC DC servo motor, DC servo motor transfer function, already we have discussed in the class. I hope you must have completed it. Similarly, AC servo motor is nothing but it is two-phase induction motor. If you have studied induction motor, you must have some idea. Otherwise, I will discuss all these things in due course of time. Then tacho generator is nothing but it is some sort of back EMF generated in DC motor that is proportional to a speed, and so it is used for measurement of a speed in terms of back EMF. So this is transfer function. Already this is going on. Block diagram representation, reduction technique we have studied. Signal flow graph representation also we have studied. Then Mason gain formula. This thing we have completed. Feedback characteristics of control system. Effects of feedbacks on variation of system parameters, system dynamics, and effect of disturbance. This also I have seen. I have shared with you, I think, few pages of Nagarath and Kothari books, Nagarath and Gopal books, and in addition to that, I have shared my notes also, in which I have discussed about the implications of using feedback in the control systems. So there are 4 benefits which is experienced naturally by using the feedback in control system. So first is it reduces the effect of parameter variations on the response of the system. And then second one is it improves the dynamics. It improves the system dynamics. Improving the system dynamics implies that time constant is reduced and thereby making the system faster in comparison to open loop systems. Then effect of disturbance. By using the feedback in control system, it reduces the impact of disturbance also. Disturbance may be replaced by noise also. And we have seen the effect of feedback on sensitivity of the system also. So that is not given here, but that also we have to study. Then we are coming to unit 2, that is time domain analysis. Right now we are studying about time domain analysis, and we have to study the impact of standard test signals on the different order of the system, like first order system, second order systems, or any other order systems. Then transient response for first order and second order systems. As far as transient response is concerned, it means we have to study
unit step response of first order system or second order systems, unit impulse response of first order system and second order systems, unit ramp response of at least first order systems. So this I have done in the class. So I expect you to solve all these things yourself and see whether you are able to complete it or not. If you find any difficulty in understanding the subject matter, you are always requested to ask me questions during class. Then transient response specifications like rise time, peak time, all these specifications in my last class I was discussing. There are different transient response specifications, out of which, there are some main characteristics or main specifications, that is rise time, peak overshoot. These three are transient time response specifications. And then steady state specifications are also there, like steady state error, and then settling time. So these two are steady state specifications. Then effect of proportional, integral, and derivative control actions. In my last class, I have given you some idea about the implications of proportional, integral, and derivative control actions. I have also explained as to how to find out the transfer function of proportional, integral, and derivative controllers. Sonakshi, are you present? Yes, sir. तो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का ट्रांसफर फंक्शन क्या निकाले थे कल? सर प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का ट्रांसफर फंक्शन सर वही था ना केडी लिया था हमने, सॉरी केपी, बस, हाँ ठीक है। और इंटीग्रल का क्या निकला था सर? एस इंटू इंटीग्रल का KI बाई एस। हाँ, और KI बाई एस को हम लोग क्या लिखे थे? KP बाई टॉ आई, है ना? yes, KI को रिप्लेस कर दिए थे KP बाई टॉ आई से, है ना? और yes, एस डिनोमिनेटर में होगा। और डेरिवेटिव कंट्रोल का क्या आया था ट्रांसफर फंक्शन? सर एस इंटू केडी, राइट। और केडी को हम लिख देंगे केपी टॉ इंटू, यस सर। तो ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। एक्चुअली हम सिलेबस से आगे बढ़ रहे हैं, कुछ छूटे नहीं। सो इफेक्ट ऑफ, अभी इफेक्ट नहीं स्टडी किए थे, तुमने स्टडी किया था घर पर, मैंने असाइनमेंट दिया था मतलब कि करने के लिए। डिड यू मैथमेटिकली सी द इफेक्ट ऑफ प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव कंट्रोल एक्शन ऑन फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम? यस सर। उसको डिराइव किए थे घर पर जाके? हाँ सर, एक बार डिराइव किया था। तो समझ में आया ठीक से? यस सर, आ गया। वाह, देखो तो तुम लोग बहुत अच्छा करोगे, ये मेरा विश्वास है। अगर अपने से समझ में आ गया तो बहुत अच्छा चीज है। फिर भी मैं एक आध बार फिर उसको अभी हम पूरा नहीं किए हैं, एक बार और उसको डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देन performance index concept and error performance indices like ISE, ITSE, IAE, ITAE। अभी ये जो है इस टॉपिक को भी तत्काल हम छोड़ देंगे, जब ऑफलाइन में शुरू करेंगे तो थोड़ा डिस्कस कर देंगे ये सब, है ना? ये जो है एरर परफॉर्मेंस इंडिसेस जो है, ISE स्टैंड्स फॉर इंटीग्रल स्क्वायर एरर, ITSE स्टैंड्स फॉर इंटीग्रल टाइम स्क्वायर एरर, IAE stands for integral absolute error, ITAE stands for integral time absolute error. So there are 4 error performance indices. In fact, why it is used? In fact, when you design a control system, you have some output in your mind, and that is known as desired output. The output which you want to get, that is known as desired output. But whether you are getting the desired output or not, it is a matter of concern. If you are not getting the desired output, there will be error signals. There will be error signals. So that error signals you see is present in all these error performance indices. Like
इंटीग्रल स्क्वायर एरर। इंटीग्रल स्क्वायर एरर मतलब जो भी एरर सिग्नल आ रहा है उसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे, उसको मिनिमाइज करना है। इसको समझ सकते हो अभी। सोनाक्षी, इसका इम्प्लीकेशन मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग में हटा लेना, फिर बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके सर। देखो, ये तो तुमको पता है कि द बेसिक पर्पस ऑफ यूजिंग फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इज टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट। और डिजायर्ड आउटपुट YD से डिनोट करते थे, याद है ना, YD ऑफ S, ठीक है? यस सर। If you are not getting desired output, there will be error signal. एरर सिग्नल क्या होगा? YDS अब माइनस YMS। YS जो आउटपुट मिल रहा है वही फीडबैक के थ्रू जो आ रहा है ना? ये समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो इंटीग्रल स्क्वायर क्या है? इट इज इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर, और दैट हैज टू बी मिनिमाइज्ड। इससे क्या होगा? एरर मिनिमाइज होगा मेरा। और हमारा पर्पस क्या है? व्हाट इज आवर एंड पर्पस ऑफ यूजिंग कंट्रोल सिस्टम? टू मिनिमाइज द एरर सिग्नल। एरर सिग्नल मिनिमाइज होगा, इट मींस we are getting the desired output, है ना? If error signal is 0, it means we are getting the desired output. जो हम चाह रहे हैं वही मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो use of entire control system is to minimize error. ये philosophy समझ में आनी चाहिए हमेशा, है ना? So integral square error is nothing but it is minimizing the integral of a square error. Then ITSE, integral time square error, integral time square error, integral of time into स्क्वायर ऑफ एरर, इसको मिनिमाइज करना होगा। देन IA, इंटीग्रल ऑफ एब्सोल्यूट एरर। यहाँ स्क्वायर ऑफ एरर नहीं है, इंटीग्रल ऑफ एब्सोल्यूट एरर को मिनिमाइज करना है ना? और इंटीग्रल क्यों ले रहे हैं? तो टोटल इंटीग्रेट कर देते हैं एक तरह से। तो इंटायर जो भी एरर हमारा एक पर्टिकुलर टाइम आ रहा है, दैट इज टेकन इनटू कंसीडरेशन। एंड बेसिक implication of integration or integral you know already from the mathematics calculus, differential calculus, integral calculus, है ना? So ITA, then integral time absolute error, T multiplied by magnitude of P. So that integral of that has to be minimized in due course of time. And when you are minimizing this, we get certain expression corresponding to all these error performance indices, है ना? तो वो हम लोग बाद में देखेंगे। Then यहाँ से पढ़ो concept of stability, थोड़ा पढ़ो तो सोनाक्षी क्या लिखा है? कंसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी लिखा है सर। पढ़ो नहीं यहाँ से क्या सब बचा है? कंसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी, कंडीशंस फॉर स्टेबिलिटी, राउथ हुड्सवर्ड्स क्राइटेरियन, रूट लोकस टेक्निक, कंसेप्ट, कंस्ट्रक्शन रूल्स। ठीक है, तो देखो ये कंसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी जो है, जैसा मैंने कहा था कि concept of entire control system revolves around the concept of imaginary number root -1 और concept of complex number क्या होता है? A plus JB, real part plus J into imaginary part, है ना? वो चीज होता है। तो तुम लोग all of you try to take into cognizance what I want to say you, that you take S plane, है ना? एक S plane ड्रॉ करो अपने कॉपी में, है ना? S plane समझ रहे हो ना? मतलब एक रियल एक्सिस होगा और दूसरा इमेजिनरी एक्सिस होगा, है ना? जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, कर्सर को देखो, Favorite swear ये word? तुम्हारा लेफ्ट टू राइट एक्स एक्सिस है, तो बीच में एक वाई एक्सिस ड्रॉ करो। वाई एक्सिस जो है दैट इज नोन एज इमेजिनरी एक्सिस आल्सो, है ना? तो इसमें कोई तुम s इक्वल टू -2 यानी निगेटिव रियल एक्सिस पर, है ना, एट ए डिस्टेंस 2 फ्रॉम द ऑरिजिन, कोई पोल एक ले लो। पोल इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस साइन एंड जीरो इज रिप्रेजेंटेड बाय जीरो साइन, है ना? तो उसमें क्रॉस करोगे तो क्या हो जाएगा? उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/s+2, 1/s+2। s+2 क्यों लिखे? क्योंकि s इक्वल टू -2, poles is lying at s इक्वल टू -2, and when you take Laplace transform, sorry, inverse Laplace transform of this, तो 1/s+2 का inverse Laplace transform क्या होगा सोनाक्षी? सर e to the power -2 हो जाएगा शायद। -2t, -2t, यस। है ना? t आएगा, देखो टाइम डोमेन में t आएगा, s डोमेन में s रहेगा, है ना? यस सर। तो s इक्वल टू -2 तो निगेटिव रियल एक्सिस पर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं पोल? यस सर। तो s+2 इक्वल टू 0 मींस s इक्वल टू -2, और टाइम डोमेन में क्या हो गया? e to the power -2t, e to the power
नहीं नहीं, e टू द पावर प्लस 2t हो जाएगा, सॉरी। अगर ये s माइनस 2 है तो उसका क्या होगा, e टू द पावर प्लस 2t। अगर s प्लस 2 है, यस सर, s प्लस 2 है तो क्या होगा, e टू द पावर माइनस 2t। -2t। ये याद रखना, इधर प्लस तो उधर माइनस हो जाता है ना। ये तो हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्म में देखे थे इसको, है ना। तो अब तुम अगर लेफ्ट साइड में पोल है तो s प्लस 2 लिखोगे, 1/s प्लस 2 है। तो उसका इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या हो गया, e टू द पावर माइनस 2t। -2t। अच्छा, तुम लोग सभी e टू द पावर माइनस 2t को प्लॉट करो, ऑल ऑफ यू इन योर कॉपी। सभी से पूछूंगा अभी, कॉपी में लिखते जाना, e टू द पावर माइनस 2t, प्लॉट ऑफ e टू द पावर माइनस 2t। तो कैसा आ रहा है सोनाक्षी इसका ग्राफ? सर लेफ्ट साइड से नीचे आएगा। e टू द पावर माइनस 2t है, इसको हम लोग ये एस प्लेन में नहीं होगा प्लॉट, ये अलग टाइम डोमेन में जो जैसे प्लॉट करते हो तुम, टाइम ले लो एक्स एक्सिस के तरफ और वाई एक्सिस के तरफ e टू द पावर माइनस 2t ले लो, यानी फंक्शन ऑफ t इक्वल टू e टू द पावर माइनस 2t। तो एट t इक्वल टू 0 कितना वैल्यू आ रहा है इसका? सर t इक्वल टू 0 तो 0 ही आएगा मेरे ख्याल से। e टू द पावर माइनस 2t 0 आ जाएगा? नहीं 1 आएगा सर, 1। तो 1 आ जाएगा, और t इक्वल टू Yes, इन्फिनिटी sir. पर क्या आ जाएगा? इंफिनिटी पे भी 1 ही आएगा सर। कैसे आएगा वो? ये सब पढ़े नहीं हो क्या? e का वैल्यू क्या होता है? हाँ सोनाक्षी, तुम कौन बोल रहे हो? तो बालक तुम्हारा क्या नाम है? यस, ठीक है, यस जी राइट कि t इक्वल टू इन्फिनिटी पर वो 0 आएगा। तो सोनाक्षी e का वैल्यू क्या आता है? e जो हम लोग लिखते हैं e टू द पावर सर माइनस 2.17 होता है e का वैल्यू तो। 2.7 होता है शायद, है ना। एक बार देख लेना क्या होता है, मुझे नहीं क्या होता है। यस, e का वैल्यू सर 2.7 के अराउंड होता है। हाँ 2.7 के अराउंड, ठीक है। तो e टू द पावर माइनस 2t है, तो 2.7 पर पावर है ना माइनस 2t, t इक्वल टू अगर कुछ भी तुम ले लेते हो, t इक्वल टू तुम इन्फिनिटी ले लो, तो माइनस 2 इंटू इन्फिनिटी, तो 1 बाय e टू द पावर इन्फिनिटी, e है 2.7, तो 0 नहीं हो गया सोनाक्षी? यस सर, यस सर। ये सब जो हमेशा याद रखो, छोटा मोटा चीज जो है वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसका प्लॉट कैसा आया, t इक्वल टू 0 पर यूनिटी, है ना, और उसके बाद 1 2 3 प्लॉट करते करते लास्ट में 0 हो जाएगा। तो इसका ग्राफ प्लॉट कर लिए सभी। किस क्वाड्रेंट में आएगा? सर फर्स्ट और सेकंड में आएगा। किस क्वाड्रेंट में आएगा? यस, e टू द पावर माइनस 2t और t वैरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, किस क्वाड्रेंट में आएगा? सेकेंड में कैसे जाएगा? e टू द पावर माइनस 2t है, t इक्वल टू 0 पर 1 है, t इक्वल टू हाँ वैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट में में रहेगा, उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अभी तो Extend- फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। अरे अभी तो फर्स्ट में है ना, एक्सटेंड तो जब तब करोगे जबकि तुम माइनस इंफिनिटी सब तक जाओगे। यस सर, यस सर। अगर नहीं माइनस इंफिनिटी 0 से इंफिनिटी तक तो वो जीरो घटते जाएगा, है ना, घटते घटते 0 हो गया, है ना। अब तुम 0 से इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी तक, माइनस इंफिनिटी से 0 जाओगे तो e टू द पावर माइनस 2t, t टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, तो क्या क्या हो जाएगा? इंफिनिटी नहीं हो जाएगा, इंफिनिटी। इनफाइनाइट हो जाएगा। और दूसरा अगर करोगे, अच्छा दूसरा वो भी प्लॉट कर लो। एक तो हो गया t वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, और दूसरा करो t वेरीज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू 0, माइनस इंफिनिटी टू, हाँ वो कैसा आएगा? यस, उसको सोनाक्षी तुम बताओ पहले, माइनस इंफिनिटी टू 0 पर e टू द पावर माइनस 2t को प्लॉट करो तो वो कैसा आएगा? सर e टू द पावर हम करेंगे, t को हमने इन्फिनिटी ले लिया, इन्फिनिटी अगर ले लिया माइनस इन्फिनिटी, तो हाँ e टू द पावर इन्फिनिटी आ जाएगा टोटल। हाँ, तो वो ऊपर से मतलब इन्फिनिटी से 0 तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू 0 पीछे तक। 1 तक जाएगा, है ना। t इक्वल टू 0 तो है ही, अब हम 0 से माइनस इंफिनिटी कर रहे हैं, है ना, यानी निगेटिव रियल एक्सिस ले रहे हैं टाइम डोमेन में,
है ना। ओके सर। तो y जो तुम्हारा है ना वो 1 तो रहेगा ही t इक्वल टू 0 पर। जैसे ये नीचे से ऐसे घटता गया था, ये उसी का विपरीत मिरर इमेज तो नहीं कर सकते हो, ऐसे करके ये बढ़ते जाएगा, है ना, थोड़ा दूसरे ढंग से। मतलब ये सब प्लॉट कर लेना, ये सब तो 10+2 सब का चीज है, समझ रहे हो, छोटा मोटा चीज है। और नहीं तो अभी भी सीख लो ये सब। एक 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 तुम टेबल बना लो, है ना, फंक्शन ऑफ t इक्वल टू -2t और t इक्वल टू 0 1 2 10, 0 1 2 10 तक ही ले लो, 3 वैल्यू निकाल के उसको मिला दो, समझ में आ जाएगा। 0 ले लो, 1 ले लो और 10 ले लो या 5 ले लो। t इक्वल टू 3 वैल्यू लेके 3 पॉइंट आएगा ना, उसको मिला के नहीं प्लॉट कर सकते हो सोनाक्षी? यस सर। ये सब घर जाके कर लेना, अभी मैं दूसरा चीज बताना चाह रहा हूँ, है ना। ये प्लॉट सब जो है ना, ये हमारा कंट्रोल सिस्टम का विषय नहीं है ना। तो मैं थोड़ा डांट देता हूं सभी को, तो इसको अदरवाइज नहीं लेना है। देखो, तो एक चीज है कि मैं जो कहना चाह रहा था स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। व्हाई डू वी से that if a pole lies on the left side of the S-plane, system becomes stable? क्यों आ रहा है? तो उसका मैं एग्जांपल दिया कि suppose a system we are taking for which the system in S domain is 1 by S plus 2. तो टाइम डोमेन में वो सिस्टम क्या हो गया, e to the power -2t। यहां तक क्लियर है सभी को? यस और सर। e to the power -2t को हमने प्लॉट किया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है ना। तो e to the power -2t को तुम उसका एरिया निकाल सकते हो कि नहीं, ये बताओ। e to the power -2t का जो ग्राफ आ रहा है, तुम कैलकुलस में एरिया ऑफ ए फंक्शन निकालते होगे। अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ e to the power -2t dt, सर एरिया अंडर द कर्व कर देते हैं, इंटीग्रेशन करके e to the हाँ, power इंटीग्रेशन -2t। वो एरिया निकल जाएगा ना। एरिया फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा, ये बताओ पहले। सोच के बताओ। e to the लिख, तुम करो इंटीग्रेट कर ही लो तुम। इंटीग्रेशन ऑफ e to the power -2t dt, t वेरीज फ्रॉम 0 to infinity, एरिया निकालो तो इनफाइनाइट हो जा रहा है। सर 1 आएगा 1 फाइनाइट होगा इनफाइनाइट आएगा? फाइनाइट। फाइनाइट आ रहा है ना। तो फाइनाइट एरिया आ रहा है, इसीलिए सिस्टम इज स्टेबल। सिस्टम इज, अगर एरिया इनफाइनाइट आ जाए तो सिस्टम अनस्टेबल होगा, है ना। अब तुम कोई पोल राइट साइड में ले लो, +2 पर ले लो, तो क्या होगा उसका एस डोमेन में 1 by s -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 by s -2 होगा कि नहीं सोनाक्षी? यस, 1 by s -2 होगा कि नहीं? यस सर, डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, तो 1 by s -2 का टाइम डोमेन में क्या होगा? e to the power +2t, e to the power 2t। और e to the power 2t का जब प्लॉट करोगे और अंडर एरिया अंडर कर्व निकालोगे तो वो क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। वो क्या आएगा? समझ में आ रहा है? हेंस सिस्टम इज स्टेबल, हेंस सिस्टम इज अनस्टेबल, सिस्टम इज अनस्टेबल। तो अगर कोई पूछे कि लेफ्ट साइड, है ना, अगर कोई पोल लेफ्ट साइड में एग्जिस्ट करता है तो सिस्टम स्टेबल क्यों होता है? अगर कोई पोल राइट साइड में एग्जिस्ट करता है तो सिस्टम अनस्टेबल क्यों होता है? तो ये समझा दोगे ना सभी लोग? सोनाक्षी एंड यस, दो ही का नाम अभी पता है, मैं सभी को एड्रेस कर रहा हूं, ठीक है। तो स्टेबिलिटी का कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं? कंसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी ये समझ में आया कि नहीं सोनाक्षी? आ गया सर। इसी को डिस्कस करने के लिए, अच्छा एक चीज तो क्लियर है कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी वी हैव टू फाइंड आउट location of roots of the characteristic equation, and the roots of the characteristic equation is known as poles of the system. And what is characteristic equation? Characteristic equation is nothing but when denominator of any transfer function is equated to 0, that is known as characteristic equation. ये सब ठीक से समझ लो। कोई ट्रांसफर फंक्शन तुम निकालते हो, उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल होता है, बट व्हेन यू इक्वेट denominator polynomial to 0, that leads to the formation of characteristic equation. ये पहले जानते ही होगे, रिवाइज हो रहा है कि नहीं सोनाक्षी? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? यस सर। तो राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरियन क्या है?
कि तुम्हें कोई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया गया है और राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरियन से तुम्हें बताया जाएगा, पूछा जाएगा रादर कि whether the system is stable or not, है ना, डिस्कस whether the system is stable or not। तो उसके लिए क्या करते हैं, राउथ ने Routh and Hurwitz jointly suggested that some array should be formed where the first and second row of that array that will be filled up by the coefficient of the characteristic equation and remaining other rows will be completed applying some rules। तो वो सब अभी हम इसके बाद में पढ़ेंगे। तो अभी हम कंसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी को डिस्कस करना चाह रहे थे, है ना। उसके बाद तुम्हारा रूट लोकस टेक्निक्स है। जैसा कि मैंने अभी कहा तुमको कि roots of the characteristic equation plays very pivotal role as far as stability of the system is concerned, and that is why locus of the roots is very much required, है ना। locus of the roots is very much required। Once you know the locus of the roots of the characteristic equation, you can very well predict, you know, whether the system is stable or not corresponding to particular वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ द रूट्स, है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि लोकेशन ऑफ द रूट्स हमको बताता है कि सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है। तो इसको हम लोग देखेंगे रूट लोकस टेक्निक चैप्टर में, है ना। तो ये सब हमारा यूनिट 2 में ही है और रूट लोकस उसका पार्ट है, तो इसको भी हम लोग समझेंगे। रूट लोकस में बहुत सारे नियम होते हैं, है ना। जैसे रूट लोकस, रुको मैं देखता हूं मेरे पास इसमें है कि नहीं नोट में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी देखना है और यूनिट 2 में है, तो इसको थोड़ा शेयर कर देते हैं, देखते हैं। इसमें तो नहीं था, इसमें ही होगा शायद, नहीं इसमें है क्या। हाँ, रूट लोकस यहाँ पर है, देखो ये अभी शेयर नहीं किए हैं लेकिन तुमको दिखा दो, है ना। ये जो तुम्हारा है रूट लोकस टेक्निक, सोनाक्षी ये दिख रहा है क्या तुमको? यस सर। तो इसको पढ़ो, तो यहाँ से प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ, यहाँ से थोड़ा सा देखते हैं। Proper selection of performance specifications, TR, TS, TP, etc. is important step in control system design. The desired behavior is specified in terms of transient response measures and steady state errors. The steady state error is usually specified in terms of error constants for standard inputs, while the transient response is specified in terms of peak overshoot, T, TS, TR, TP, etc. T नहीं है, TS मतलब सेटलिंग टाइम, कल नहीं बताए थे। हाँ, यस सर, यस सर। और TR क्या है? रिस्पॉन्स टाइम, राइज टाइम, कल ही तो बताए थे। हाँ, ताकि जब तक वो सर यूनिटी नहीं चला जाता है, दैट इज द रिस्पॉन्स। हाँ, 100% जब चला जाता है रिस्पॉन्स का वैल्यू तो TR होता है ना। यस सर। और ये एंड पीक टाइम, हाँ, एक्सेट्रा फॉर अ स्टेप इनपुट। Hence, we see that the relative stability and the transient performance of the control system, closed loop control system, are directly related to the location of the closed loop roots of the characteristic equation. Okay, sir. Roots of the characteristic equation in the S-plane. That is, it is only location of the roots which says whether the system is overdamped, underdamped, or infinitely damped. Critically damped. Okay, sir. वो अभी जो पढ़ रहे थे ना, जीटा का जो डिफरेंट वैल्यू आता है, जीटा इक्वल टू ग्रेटर देन यूनिटी तो ओवर डैम्प्ड, जीटा लेस देन यूनिटी तो अंडर डैम्प्ड, and zeta equal to unity is critically damped. Hence, it is often frequently necessary to adjust one or more system parameters in order to obtain suitable root locations. Therefore, it is worthwhile to determine how the roots of the characteristic equation of a given system migrate in the S-plane as the parameter k is varied. यही मैं बता रहा था अभी तुमको, है ना, कि रूट्स कैसे वेरी कर रहा है, उसके आधार पर हम पता करेंगे सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है ना। यस सर। दैट इज, यहाँ से खाली पढ़ दो। That is,
it is useful to determine the locus of the roots in the S-plane as a parameter is varied. The root locus method was introduced by Arrhenius in 1948 and is utilized extensively in the control engineering practice. RL method is the graphical method for sketching the locuses of the roots in S-plane as a parameter is varied. है ना, तो ये सब बाद में हम पढ़ाएंगे। तो इसके पहले जो है थोड़ा सा हम वो चीज डिस्कस करना है। ये तुमको ये वाला चीज जो है ये है ना, ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे और ये सब बता दिए हैं, तुम लोग कर लेना। अंडर डैम्ड वाला केस सब पढ़ लिए थे सोनाक्षी, क्रिटिकली डैम्ड वाला सब? यस सर, यस सर। हाँ, ये सब प्रूफ कर लेना। सब प्रूफ क्या हुआ है ये ओगाटा से लिया गया है। के ओगाटा का हम किताब भी शेयर कर दिए हैं, उसको तुम खोज के निकाल सकते हो, उसमें ये चीज कहाँ पर है। मैं बोल रहा हूँ एक एक चीज को, जिसको डाउट है वो लिख लिया करो कि मैं क्या इशारा कर रहा हूँ, है ना। तो ये चीज उससे एक नोट बढ़िया सा बना लो। ये चीज भी के ओगाटा में दिया होगा, ये सब ग्राफ जो है, और ये मैट लैब से भी प्लॉट होता है। तो अभी तुम ऐसे इसको समझ लेना कैसे होता है। डिफिनीशन ऑफ ट्रांजिएंट रिस्पांस स्पेसिफिकेशंस, ये पिछले क्लास में हम बता रहे थे। ये मैक्सिमम ओवरशूट है ना, सेट राइज टाइम TR, TP इज पीक टाइम। पीक टाइम फर्स्ट पीक में पहुंचने में जो टाइम लगता है रिस्पांस को, उसको पीक टाइम कहते हैं। और 100% रिस्पांस को पहुंचने में जो टाइम लगता है दैट इज नॉन एज राइज टाइम। एक डिले टाइम भी होता है, उसको छोड़ देना तत्काल, वो सब 50% को पहुंचने में जो टाइम लगता है उसको डिले टाइम बोलते हैं, है ना। लेकिन जान है ना, इट इज टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पांस टू रीच हाफ ऑफ द फाइनल वैल्यू, दैट इज नॉन एज डिले टाइम, TT। तो डिले टाइम, राइज टाइम, पीक टाइम, then maximum overshoot. It is obvious from the figure that it is the response value at t equal to TP, that is peak time, minus steady state response. That is if it is unit step, then it will be reduced, 1 will be reduced from the maximum overshoot, और ये तुम्हारा क्या maximum overshoot कहलाता है ना। तो इस चीज को थोड़ा मैथमेटिकली समझ लेना है। और इसका डिडक्शन जो है उसी ढंग से हमने बताया था कि सेटलिंग टाइम का इम्प्लीकेशन क्या होता है, स्टेडी स्टेट एरर क्या होता है। जैसे तुम लोग कहीं घूम रहे हो तो उसको माइक को ऑफ करो। किसका माइक ऑन है? यस, हाँ, ये देखो यस क्या लिखा है, स्टेडी स्टेट एरर है नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको पढ़ो, क्या है? सेटलिंग टाइम को पहले पढ़ो, सेटलिंग टाइम को। स्पेसिफाइड है। यूज, हाँ 6 वाला पढ़ो, स्टेडी स्टेट एरर। ESS, स्मॉल ESS। हाँ देखो, एरर के लिए E यूज कर रहे हैं, स्टेडी स्टेट के लिए SS यूज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? हाँ, समझ में आ गया ना? हाँ, तो ये सब थोड़ा लीक दे दिए हैं, सब चीज पढ़ के आओगे तो ठीक रहेगा। अब एक्सप्रेशंस फॉर टाइम रिस्पांस स्पेसिफिकेशंस ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम। अब राइज टाइम में देखो, राइज टाइम क्या था कि 100% को जब अचीव कर लेता है, तो ये हम एक्सप्रेशन ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर लिया था यूनिट स्टेप रिस्पांस के लिए, निकाले थे कि नहीं? राइट हैंड साइड वाला जो है, देख रहे हो? यस सर। इसको 1 से तुम क्या इक्वेट कर दोगे तो राइज टाइम निकल जाएगा कि नहीं सोनाक्षी? यस सर। ये इसको इक्वेट करोगे आप, बाद में सिंपल मैथमेटिक्स है कैसे निकाला है, तो ये TR इक्वल टू पाई माइनस 5 ओमेगा डी हो जाता है ना। TR इक्वल टू पाई माइनस 5 इक्वल टू 10 इनवर्स रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, है ना।
तो ये वाला फॉर्मूला डिराइव भी कर लेना, और नहीं डिराइव आसान है ये, है ना। अब देखो 1 1 है तो 0 हो गया, तो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव 0 नहीं हो गया, है ना। ओमेगा डी प्लस टी आर इक्वल टू क्या होगा, ये जनरल वैल्यू पढ़े हो, देखो मैं बगल में लिख भी दिया है, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, एन पाई प्लस माइनस 1 पर अल्फा। तो इससे तुम्हारा ये इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है सोनाक्षी, ये सब किए थे घर पर? यस सर। हाँ, नहीं किया हो तो इसको पूरा कर लेना। उसी ढंग से पीक टाइम को भी डिराइव करना है। अच्छा, पीक टाइम पर क्या है, एक चीज देखो फिगर में, यहाँ पर पीक टाइम पर क्या है, इफ यू ड्रॉ द टेंजेंट तो क्या होगा, दैट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, होगा कि नहीं। उस कर्व पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो दैट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना। यानी रिस्पांस को अगर डिफरेंशिएट करोगे एट टाइम टीपी तो दैट शुड बी इक्वल टू 0, दैट शुड बी इक्वल टू, बिकॉज टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना। तो वही क्या है, पीक टाइम निकालने के लिए जो तुम्हारा एक्सप्रेशन था देखो ये है ना, यस पढ़ो क्या लिखा है, रिफरिंग टू इक्वेशन 8 क्या है, समझ में आ गया कि नहीं। ये वो जो एक्सप्रेशन था उसको सीटी का था, तो उसको डिफरेंशिएट करोगे, 0 से इक्वेट करोगे तो टीपी निकल जाएगा। ठीक है, ये किया हुआ है यहाँ पर। ये थोड़ा सा कोऑर्डिनेट इसका ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन लगा के, और ये प्रूफ भी किया हुआ है, उसको कर लेना। ठीक है, तो ये टीपी क्या हो जाएगा, पाई बाय ओमेगा डी हो जाएगा। ओमेगा डी क्या है, ओमेगा एन रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये याद भी रखो, देखो टी आर इक्वल टू पाई माइनस 5 बाय ओमेगा डी, और टीपी इक्वल टू 5 0 हो जाता है, उसमें पाई बाय ओमेगा डी हो जाता है। टीपी क्या है, पाई बाय ओमेगा डी। सोनाक्षी याद रहेगा कि नहीं सब? यस सर। हाँ, इसको प्रूव भी कर लेना। उसी रंग से पीक ओवरशूट, पीक ओवरशूट में क्या है देखो, पढ़ो यस क्या है ये, फ्रॉम द डिफिनीशन। ये समझ में आया कि नहीं? रिस्पॉन्स, सीटीपी मतलब रिस्पॉन्स एट पीक टाइम। माइनस यूनिटी फिगर में भी दिखा रहा था वो, तो ये जब करोगे तो ये निकल गया। अच्छा, इसमें टीपी आ जाएगा, टीपी का वैल्यू रख दो, टीपी जो प्रूफ किया अभी, पाई बाय ओमेगा डी, वो रखोगे तो एमपी का ये एक्सप्रेशन आ जाता है। ये जो घेरा हुआ है, जो सर्कुलर, ये जो बॉक्स के अंदर जो है, क्या है ये पढ़ो, पाई जीटा, जीटा स्क्वायर, है ना। ई टू दी, ये पावर होता है, ऐसा लिखते हैं, जिसका मतलब ई रेज टू दी पावर है ये, है ना। ई रेज टू दी माइनस पाई जीटा डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, है ना। तो ये अब इसको प्लॉट भी किया है, तो ये सब तुम पूरा पढ़ लेना। उसके बाद सेटलिंग टाइम आता है ना। तो सेटलिंग टाइम में क्या होता है, ये इन्वेलप होता है दोनों साइड से, है ना। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट पे इसको जब प्लॉट करोगे तो ये इन्वेलप के आधार पर ये हम निकालते हैं, है ना। तो इन्वेलप के आधार पर जब निकालोगे तो इसमें क्या है, ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म है, अगर 2% टॉलरेंस बैंड के लिए करते हो तो इसको 2% से कंपेरिजन कर देना है। इससे तुम्हारा जो है सेटलिंग टाइम टीएस निकल जाएगा। अगर ये 5% लेते हो तो उससे अलग वैल्यू आ जाएगा। इफ यू टेक 2% टॉलरेंस बैंड, देन सेटलिंग टाइम टीएस इक्वल टू 4 बाय जीटा ओमेगा एन। इफ यू टेक 5% टॉलरेंस बैंड, देन सेटलिंग टाइम इज 3 बाय जीटा ओमेगा एन, 3 बाय जीटा ओमेगा एन। ठीक है ना। ये जो तुम्हारा है, ये जो इन्वेलप है, यानी देखो ये जो घटते घटते घट जाता है टॉलरेंस में जाने के लिए, उस व्हाट इज डिटर्मिनेंट फॉर दैट, ये जो एक्सप्रेशन है तुम्हारा, इसमें एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। दिस इज द ओनली टर्म व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द रिस्पांस टू गो इनसाइड अ टॉलरेंस बैंड. That is why if you take 2% tolerance band, equate this with the 2% tolerance band. If you take 5% tolerance band, then equate this exponential terms with the 5% tolerance band, and whatever time you get, that is known as settling time, है ना। सोनाक्षी समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये डिड्यूस किया हुआ है, इसको करोगे, इसको निकाल के ये सब नेक्स्ट क्लास में नोट बढ़िया से बनाकर इसको सब किया हुआ है प्रूफ, तुमको खाली ये करना होगा, है ना। तो ये जो है ये सब प्रूफ कर लेना।
नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे स्टेडी स्टेट एरर एंड एरर कांस्टेंट्स इन यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम्स। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, है ना। तुम चाहो तो इसको भी पढ़ कर आ जाना, ये सब लिखा हुआ है हमारे नोट में, है ना, इसी से पढ़ लेना। इसमें बहुत बढ़िया से मैंने लिखा है, ये जो है ना, ये नोट बहुत बढ़िया बनाया है मैंने, ठीक है। तो आज वाला चीज पढ़ते हुए, राइज टाइम पीक टाइम सबका एक्सप्रेशन डिड्यूस करते हुए, ये नेक्स्ट क्लास के लिए भी तुम पढ़ के आ जाओगे तो समझ में आ जाएगा। इज इट ओके सोनाक्षी? यस सर। हाँ, और तुम लोगों को अभी तक जो भी चीज समझ में नहीं आया है वो पूछ सकते हो, मैं थोड़ा अटेंडेंस की ओर बढ़ रहा हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये सब चीज। हाँ, अभी से ही पढ़ते जाओगे तो बाद में प्रेशर कम आता है, समझे। और इस पर तुम भविष्य में मैकेनिकल सिस्टम में प्रोजेक्ट भी कर सकते हो इस पर। अभी तो तुम्हारा 4th सेमेस्टर है ना। हाँ, इसमें जिसको थोड़ा मैट लैब सबसे इंटरेस्ट है फलाना, तो तुम एक प्रोजेक्ट भी कर सकते हो इस पर, बहुत इंटरेस्टिंग है। अटेंडेंस प्लीज। पहले मैं बड़ा ग्रुप का ले लेता हूं। पूर्वी तुलसियान, प्रेजेंट सर। प्रियांशु, प्रेजेंट सर। आर्यन माहेश्वरी, प्रेजेंट सर। हर्ष शुक्ला, प्रेजेंट सर। सोनाक्षी, प्रेजेंट सर। सोनाक्षी वाजपेयी है ना। ध्रुव सिंधु, प्रेजेंट सर। रवि कुशवाहा। प्रेजेंट सर। देखो हमारे देश में कितना अच्छा सा टाइटल है, गुलदस्ता के तरह, है ना। जैसे फूल में बहुत सारे रंग होते हैं, वैसे ही ये टाइटल भी बहुत डिफरेंट कलर के फूल है, समझ रहे हो ना। और जब हम, है ना, और ये सब फूल समझ के ही एक दूसरे से, जैसे फूल में सब कलर होता है तो उसको हम बहुत अच्छा मानते हैं, वैसे ही अगर बहुत टाइटल है इसको अच्छा मानते हुए प्रेम और सौहार्द से रहना है। हर्षवर्धन गौर, प्रेजेंट सर। करण यादव, अनिकेत। प्रेजेंट सर। हाँ, करण यादव शायद प्रेजेंट लग रहा था, नहीं उसका माइक नहीं चल रहा है क्या, इज इट ट्रू? सर प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। ठीक है। हर्ष पौरवाल, प्रेजेंट सर। अग्रिम अग्रवाल, प्रेजेंट सर। कानव सिंह, प्रेजेंट सर। सैयद मोहम्मद रियान, प्रेजेंट सर। दीपक चंदवानी, प्रेजेंट सर। हिमांशु सैनी, प्रेजेंट सर। ऋत्विक भारद्वाज, प्रेजेंट सर। मोहम्मद साहिल, यस सर। अभिनव कुमार, प्रेजेंट सर। समर्थ जैन, प्रेजेंट सर। यासिका, प्रेजेंट सर। खुशी, प्रेजेंट सर। उदित पाठक, प्रेजेंट सर। आर्यन सोलंकी, प्रेजेंट सर। अनीश वर्मा, मानिक भूषण, प्रेजेंट सर। सत्यम परिदा, प्रेजेंट सर। आयुष यादव, प्रेजेंट सर। अनिर्बान दत्ता बरुआ, आदित्य सेन, प्रेजेंट सर। अद्री शिखर डेका। प्रेजेंट सर। सर कल मैं प्रेजेंट था सर। अरे सब प्रेजेंट ही है, देखो ना, दिख नहीं रहा है। नहीं सर कल की मेरी एब्सेंट लगी है। आदित्य सेन। सर अदृश्य। अरे तो नहीं आए होगे ना, ऐसा तुमसे पुराने जन्म का दुश्मनी है क्या? नहीं सर कल मैं प्रेजेंट था सर। डेका बोल रहे हो? यस सर। चलो ठीक। आस्था सिन्हा, प्रेजेंट सर। विशाल, अंजलि। प्रेजेंट सर। ये विशाल एब्सेंट लग रहा है। सर विशाल प्रेजेंट। अच्छा ठीक है।
तनिष्क कुमार, प्रेजेंट सर। सोनिया, Present, sir. विशाल, प्रेजेंट सर। हिमांशु, प्रेजेंट सर। सुमित आनंद, वंश माहेश्वरी, प्रेजेंट सर। प्रत्योष, प्रेजेंट सर। निखिल सुरेश, प्रेजेंट सर। अनन्या सरकार, प्रेजेंट सर। कुंदन बंसल, प्रेजेंट सर। विनय। प्रेजेंट सर। सर हाँ, कौन बोल रहे हो? सर मैं सुमित सर, मैं रह गया था। अच्छा, मैं सुमित आनंद। अच्छा, चलो ठीक है। अभी मत बोलो, एक बार मुझे करने दो पहले, है ना। कुंदन बंसल, विनय, प्रेजेंट सर। वरुण, सर सर प्रेजेंट सर, present है। उसने भी प्रेजेंट बोला था। हम्म, प्रेजेंट सर। हर्षवर्धन, प्रेजेंट सर। रीसु रुंडला, मोहम्मद निसार, ऋषभ जैन, प्रेजेंट सर। प्रिंस राणा, गौरव चौहान, प्रेजेंट सर। सुशांत प्रकाश, प्रेजेंट सर। शिवम रजक। सर प्रिंस प्रेजेंट है। अरे मुझे लौटने दो अब फिर। सुशांत, प्रेजेंट सर। शिवम रजक, प्रेजेंट। अभिनव गौतम, यस सर, प्रेजेंट। आर्यन शेखर, प्रेजेंट सर। भव्य कुमार ध्रुव, यश शर्मा, प्रेजेंट सर। भक्त नौरांग, प्रेजेंट सर। प्रथम मलिक, प्रेजेंट सर। प्रथम मलिक। अनिमेश, Yes, कीर्ति सागर, तुषार सैनी, प्रेजेंट सर। पंकज, प्रेजेंट सर। ध्रुव कुमार। प्रेजेंट सर। सर 4070 प्रेजेंट। 4050। सर 51 भी प्रेजेंट है। 4053 also present। 40 आपने सर 053 लगा रखी है मेरी। 4050 रीशूट होना सर। हाँ 405 40। 50 हाँ, हिंदी में बोलो, देखो कैसे ये लड़का बोल गया। सर 29 की वैसे एब्सेंट लगी थी आपने। अब सब सर प्रेजेंट है 29 की भी एब्सेंट लगा रखी है आपने। किसका? था मैं सर आपने सब 29 प्रेजेंट। वाली आज तो सब प्रेजेंट हो गया। 4050। सब प्रेजेंट हो गया। देख लो, सर आपकी क्लास में सर बच्चे आ ही जाते हैं सर, इतने अच्छा पढ़ाते हो आप। अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तुमको ऐसा बोलने के लिए। थैंक यू सर। अब बैक वाले कुछ बच्चे हैं। औद्विकनाथ, प्रेजेंट सर। औद्विकनाथ मोहर, प्रेजेंट सर। दिव्या दर्शन, यस अर्नब सर। सिंह, इज्जोत, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। ऋषभ, प्रेजेंट सर। अक्षत, प्रेजेंट सर। यस सर। ऋषभ शर्मा, प्रेजेंट सर। सुमित दास, प्रेजेंट हर्ष सर। सिंह, मयंक बंसल, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट अरुण, सर। अरुण इज एब्सेंट है, केशव, नवनीत यादव, प्रेजेंट सर। गरिमा सिंह। Present, sir. ठीक है, तो ये बीच में 4 एब्सेंट हैं और सब प्रेजेंट है। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन। अपना स्वास्थ्य पर ध्यान दो और दूसरों के भी स्वास्थ्य के बारे में सोचना है ना। थैंक यू सर, टेक केयर। The way to be happy is to make someone happy and have a little heaven right here। ठीक है, ये फॉर्मूला को याद रखना है। सर सही बात है सर। 4003 की अटेंडेंस लगा दो। हैं? 4003। कहाँ है 4003? रेगुलर सर, अरे 23 वाला बैच है। आज सब प्रेजेंट हो गया, जाओ उधर तो सब प्रेजेंट है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। ओके थैंक यू सर। ओके ओके।